Hello everyone, welcome back to Knock Knock AR Education. Myself Alka Singh Chauhan. So I hope all of you are fine. So in this video we are going to discuss all the questions related to integral calculus जो कि पूछे गए हैं IIT JAM MA क्वेश्चन पेपर 2015 में. तो ऐसे ही हम सारे questions discuss करेंगे. तो let's get started with the question number 1. Question number 1, they ask the limit extending to 0 plus 1 by sine square x by 2 to x sine inverse t dt is equal to, and we have been given 4 options. So let's get started with the discussion. Let me write down the question once for you. Okay, give me 1 minute. All right, so we have been given limit x tending to 0 plus 1 by sine square x by 2 to x sine inverse t dt, right? This is our question. So we need to find out this limit. So what I did is that I converted it into numerator by denominator form. जैसे ही हम इसको numerator by denominator form में convert करेंगे तो all of you can see very easily that now this is a 0 by 0 form once you are going to apply the limit. Now if it is a 0 by 0 form, so all of us know we will apply LH rule. So according to the LH rule, we will differentiate the numerator as well as the denominator individually with respect to x. So in the numerator part you need to differentiate integral, and denominator part is easy for you. So what we need to do is that we are going to apply the Leibniz rule to evaluate the differentiation of an integral. So all of you might be aware about the Leibniz rule. According to the Leibniz rule, if we have an integral of such kind, integral a of x to b of x and a function of x in t with respect to t. So according to the Leibniz rule, we are going to differentiate this integral like this, and then we will apply the upper limit in terms of t along with its differentiation, minus we will replace t with the lower limit along with its differentiation. This is what is called as the Leibniz rule, which is also you might have heard about differentiation under the sign of integration. So now coming back to the question, we'll apply here the Leibniz rule. So as you know that sine inverse t is completely a function of t, so its partial differentiation with respect to x will give us 0. Then we are going to replace t with the upper limit along with its differentiation. Now lower limit along with its differentiation. In the denominator part, the differentiation of sine square x will give us 2 sine x cos x, which we can write as sine 2x. Alright. So again, if you are going to apply the limit, you will see it is again given us a 0 by 0 form. So we are going to apply the LH rule once again. So we will differentiate the numerator. It will give us under root 1 minus x square, then square root of 1 by 1 minus x square by 4, and again 1 by 2. And the differentiation of sine 2x will give us 2 cos 2x. Now we are going to apply the limit, and all of you know that we will convert it into limit h tending to 0 and replace x by 0 plus h. So we'll get the same term, and once we are going to apply the limit, we'll get 1 minus 1 by 4, and here you are getting 2. So it is coming out to be 3 by 8. So the question number 1 that we need to discuss today was this, and the answer for this question came out to be 3 by 8. That is, the limit of this question is 3 by 8. सो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस इतना था कि अपने को एक लेबनीज रूल यूज़ करना था इसकी लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए. सो आई होप नाउ इट इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, बढ़ते हैं फिर हम आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ. और अपना दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये रहा. आपको पूछा है फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई डज द इंटीग्रल एक्स टू वाई 6 माइनस टी स्क्वायर डी टी अटेन्स इट्स मैक्सिमम. यानी कि आपको ऑप्शंस में कुछ पॉइंट दे रखे हैं एक्स कॉमा वाई टाइप के, और आपको पता करना है किस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है. तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं. एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स टू वाई, एंड देन वी हैव 6 माइनस टी स्क्वायर dt. All right.
सो मैक्सिमा निकालना हो, मिनिमा निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती। अब अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में व्हेन वी आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल तो हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ता है एंड एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ता है। एफ एक्स निकालने के लिए आप वापस से देखो, हम सेम चीज़ ही कर रहे हैं। एफ एक्स के लिए हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो उस टाइम पे y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट और हम लेबनीज लगा सकते हैं। तो लेबनीज लगाने से अपने को, क्योंकि x लोअर लिमिट में बैठा है, तो अपने को ये मिलेगा, राइट। इक्वल टू जीरो करने से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। सो यू नो वेरी वेल, इसके रूट अपने को क्या मिलेंगे, -3, 2, राइट। इन अ सिमिलर वे एफ वाई लगाएंगे, लेबनीज रूल रखेंगे, तो अपर लिमिट के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, एफ वाई अपने को मिलेगा 6 - y - y² इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे सॉल्व करने पे भी हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -3, 2। अब ऑल ऑफ यू नो एक्स कॉमा वाई एक क्रिटिकल पॉइंट तभी होगा जब वो एफ एक्स इक्वल टू जीरो को भी सेटिस्फाई करे एंड एफ वाई इक्वल टू जीरो को भी सेटिस्फाई करे। ये दोनों सेटिस्फाई होंगे तो ये क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का। तो हमारे पास एक्स और वाई की ये पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम निकालें इसके लिए तो वो बनेगा -3, देन विल गेट -3, 2। फिर इस x इज इक्वल टू 2 के साथ पेयर अप करेंगे तो हमें ये मिलेंगे टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन में आगे हमें प्रोसीड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर आप एग्जाम में काम कर रहे हो तो आपको कुछ स्मार्टली काम करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे यहाँ पे तो आपको -3, 2 एक दिख रहा है, आपको पता है हाँ दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, ये आंसर हो सकता है। फिर आपने बी सी डी ऑप्शंस को देखा तो आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट तो आपको ये मिले हैं, -3, -3, -3, -3, 2, देन 2, -3 एंड 2, 2। तो अब आप देखो -3, 4 तो क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, राइट। -2, 2 तो क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, 2 एंड 3 भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो अब क्रिटिकल पॉइंट ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा बन सकता है जिसपे फंक्शन मैक्सिमम अटेन करेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में बिना आर टी माइनस एस स्क्वायर का साइन देखे हुए, आर ग्रेटर देन लेस देन जीरो देखे हुए हमने आंसर कर दिया, जस्ट क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन यूज करके। और अगर आप फिर भी क्लैरिटी के लिए चेक करना चाहो तो आप देखोगे x इक्वल टू -3, 4 या -2, 2 या 2, 3 वो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा इन दोनों इक्वेशंस को, एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ वाई इक्वल टू जीरो, राइट। यू कैन चेक इट। सो दिस इज हाउ बिना आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करे वी कैन आंसर कि इस फंक्शन को मैक्सिमम कहाँ पे अटेन होने वाला है। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड ये MSQ टाइप क्वेश्चन है, एज यू कैन सी 2015 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है एफ आर टू आर एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू -5 to x t - 1 होल क्यूब dt। तो आपको बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स एफ टेक्स द वैल्यू 1। आई मीन ये आपको इंटरवल्स में x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और आपको पूछा है कि x की वो वैल्यूज देखो पहले तो, ठीक है, जिसके लिए f ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। पहले आपको ये निकालना है, फिर ये x कौन से इंटरवल में बैठा है ये आपको इस क्वेश्चन में चेक करना है। यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स f टेक्स द वैल्यू 1, यानी वो x की वैल्यूज कौन से इंटरवल में है जिसपे x f ऑफ x जो है वो 1 हो जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कुछ नहीं करना था, आपको सिंपली फंक्शन लिख लेना है जो भी आपको गिवन है, ठीक है। -5 to x t - 1 whole cube dt. You simply substitute fx is equals to 1. Once you are going to substitute it, what you will get, -5 to x t - 1 whole cube dt is equal to 1. You just integrate it, you will get t - 1 whole power 4 by 4, and this is -5 to x is equal to 1. You can transfer 4 this end, so what you will get, x - 1 to the power 4 minus this is this is t - 1, right. So this will be -6 to the power 4 is equal to 4. So this will be x - 4 to the power 4 is equal to 4 plus 6 raised to the power 4. Once you will evaluate it, you will see it is coming out to be 1300. So x - 1
x minus 1, so sorry, this is x minus 1, x minus 1 raised to the power 4 is coming out to be 1300, implies x minus 1 whole square will be your plus minus, you can write it down like 10 square into 13, right? So it will be the square of x minus 1 is going to be plus minus 10 root 13, right? This is what you are getting as your answer. Now you have to proceed with the आंसर थ्रू ऑप्शन. ठीक, पहले ऑप्शन में आपको बोला है कि जब आपका x जो है उसका रेंज क्या है -6 से 0. ठीक है, -6 से आपका जो x का रेंज है वो 0. तो आप देखो क्या इस इंटरवल में एफ एक्स इक्वल टू 1 हो रहा है या नहीं. तो हमने क्या किया, हमने ये इवेल्युएट करने की कोशिश करी. x -1 करोगे आप तो देखोगे आपको ये मिलेगा, राइट? यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस if you are going to evaluate x minus 1 over here. Then what you did, you just square up both the things, you just square up. So x minus 1 to the whole square, you will get lying between 1 to 49, right? Now you can very easily say that here 10 root 13, right? 10 root 13 is a value that will belong to 1 to 49, right? You are getting this if you are going to evaluate it. All right, so what you'll observe that yeah, this is an interval where this property is satisfied. So a contains all the values of x at which fx is equals to 1. ठीक है, इन अ सिमिलर वे हमने बी ऑप्शन को देखा, वो दिया था अपने को -2 से 4, -2 से x की वैल्यू हमें 4 गिवन थी. ठीक है, तो हमने x -1 इवेल्युएट कर लिया तो ये हमें ये मिला. तो x -1 का होल स्क्वायर किसके बीच में लाई किया, 0 to 9 के बीच में. नाउ यू कैन सी दैट 10 रूट 13 अपने पास जो वैल्यू आ रही है क्या वो बिलोंग करती है 0 to 9 इंटरवल में. चेक करो सारे लोग, क्या ये बिलोंग कर रही है 0 to 9 इंटरवल में. नो, इट डजंट बिलोंग, राइट? नहीं बिलोंग कर रहा है. इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है दैट इज नॉट ट्रू. ये ऑप्शन x की उन वैल्यूज को नहीं रखता है जहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो जाए. आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमें a मिल चुका है और b डिस्कार्ड हो चुका है. ठीक है, ऐसे ही हम ऑप्शन सी और डी के लिए काम करने वाले हैं. ऑप्शन डी के लिए आप सी के लिए पहले चेक कर लेते हैं. ये जो हमारे पास x है वो 2 से 8 के बीच में है, तो x -1 जो है वो आपका 1 से 7 के बीच में होगा. तो x -1 का होल स्क्वायर 1 से 49 के बीच में होगा. एंड वी नो दैट 10 रूट 13 जो है वो बिलोंग कर रहा है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से 49 के बीच में. इसलिए हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. ठीक है, सी वाला. वंस विल गो टू ऑप्शन नंबर डी. एक्स जो है वो लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ, 6 से 12 के बीच में. तो x -1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 5 से 11 के बीच में. तो x -1 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ है, ऑफ कोर्स यहाँ पे लाई कर रहा है. तो नाउ यू कैन सी 10 रूट 13 जो है वो बिलोंग करेगा यहाँ पे. सो डी ऑप्शन विल ऑल्सो बी करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी गॉट टू नो. बस हमने इतना सा काम किया, क्या किया कि हमने x -1 का होल स्क्वायर देख लिया कितना आ रहा है. ठीक है, उसको देखने से ही हमारा आधा काम जो है वो फिनिश हो गया. So this is how we answered this question number 3. I hope now it is clear to all of you. Okay, तो आते हैं हम अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे अपने को एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम वो कर्व लिख लेते हैं जिनका अपने को एरिया निकालना है. एक लिखा है x इज इक्वल टू 6y² - 2 और दूसरा अपने पास गिवन है x इज इक्वल टू 2y². ठीक है, अब हमें अच्छे से पता है कि ये दोनों जो हैं वो अपने पास पैराबोला ही हैं. ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ देम. तो एक अपने पास जो पैराबोला है वो कुछ ऐसा जा रहा है. ओके, so this is our parabola, right? x is equal to 2y². और ये जो है आप देख सकते हो इसका जो वर्टेक्स होगा वो आपको -2, 0 पे मिलेगा. तो दिस विल गो समथिंग लाइक दिस. तो नाउ यू कैन सी वेरी इजीली कि इस रीजन की बात हो रही है. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन, राइट? हमें इस रीजन का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं.
यहाँ पे देखो जब हम x को 0 करेंगे तो y की हमें दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, वो है +-1/√3, यानी ये पॉइंट जो है वो 0,1/√3 है और ये वाला पॉइंट जो है वो 0,-1/√3 है। उसके अलावा हमें एक और चीज़ चाहिए, वो क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि आपको पता है जब हम एरिया निकालेंगे तो हम एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, वो अपने को आसान दिख रहा है। स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो हमें x का वैल्यू पता चल रहा है कि x का रेंज 6y² - 2 से 2y² तक जा रहा है, लेकिन y की हमें बॉटम से टॉप जाना है, यानी हमें बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पता होना चाहिए। तो उसको पता करने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी दोनों पैराबोलास की। तो 2y² = 6y² - 2, क्योंकि वो x, y पॉइंट कॉमन होगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 4y² = 2, यानी y = +-1/√2। तो यानी यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो आपको समथिंग a, 1/√2 मिलेगा और यहाँ पे a, -1/√2 मिलेगा। अब आपको x निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मतलब है y की लिमिट से। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो -1/√2 है और टॉप जो है वो 1/√2, तो हमें y का भी लिमिट मिल गया। देखो, नाउ वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, कि हमें यहाँ पे लिमिट्स रखनी है एंड यू जस्ट इंटीग्रेटेड यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। तो y हमें पता है -1/√2 से +1/√2 पे जा रहा है, और x का लिमिट भी पता लग गया, 6y² - 2 से 6y² - 2 से 2y² जा रहा है। अब अपने को बस इंटीग्रेट करना है, करते हैं इंटीग्रेट। -1/√2 से 1/√2, यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो 2 माइनस का 4y² dy आ रहा है। अब ये क्योंकि एक इवन फंक्शन है तो हम 2 टाइम्स लिमिट को ऐसा बना सकते हैं और यहाँ से 2 हम और बाहर ले सकते हैं, ऐसा बन गया अपने पास। नाउ यू कैन सी दिस इज 4, इंटीग्रेट करेंगे इसको, y - 2y³ आ जाएगा, 0 से 1/√2, राइट, ऐसा बनेगा। अब जब हम लिमिट लगाएंगे तो दिस विल बी 1/√2 -2, y³ है तो ये 1/2√2 आ जाएगा और 3 ऑलरेडी है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये √2 बाहर निकाल लिया, 1 - 1/3 बन गया, तो दिस इज 4/√2 एंड दिस इज 2/3। तो ये क्या बन गया, 4√2/3 बन गया। अब ऑप्शंस में देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, सी वाला सेटिस्फाई हो रहा है, सी। हाउ इजीली वी इवेल्युएटेड इट। बस एक फिगर ड्रॉ करनी थी अपने को, रीजन देखना था और लिमिट्स निकालनी थी, और बस जो हमारे पास किसी भी रीजन का एरिया निकालने का तरीका है कि बॉटम से टॉप जाओ एंड टॉप बॉटम से टॉप जाके लेफ्ट टू राइट चले जाओ और हमें लिमिट पता लग जाएगी, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था 2015 के क्वेश्चन पेपर का। देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या गिवन है। लेट एल बी द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द कर्व x = x of y between the lines y = 1 and 3 where x of y satisfies this expression। तो आपको ये l ही बताना है, यानी आपको लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द कर्व बताना है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। देखते हैं, अब आप सबको पता होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर जब कभी भी हमें लेंथ ऑफ द कर्व ऐसा कुछ निकालना होता है, ठीक, वी हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला। तो जब हम अब अगर अपने को x इन टर्म्स ऑफ y गिवन होता है तो हम इसको ds/dy बना लेते हैं। अगर हमें y इन टर्म्स ऑफ x गिवन होता है तो हम ds/dy बना लेते हैं, बट ds/dx बना लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है, अपने को x दिया है, देखो dx/dy गिवन है, तो व्हाट वी डिड, हमने इसको ये इवेल्युएट कर लिया, ds/dy = √1 + dx/dy का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा ds √dx² + dy² और फिर हमने ये कर लिया, ठीक, क्योंकि हमें dx/dy ही गिवन है। अगर सपोज dy/dx गिवन होता तो यहाँ पे 1 + dy/dx का होल स्क्वायर रहता और ये ds/d क्या बन जाता, dx। ठीक है, अब अपने को लिमिट भी पता है, ठीक, तो हम जब इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y1 जो है वो अपने पास कहाँ से कहाँ गया है, 1 से 3 बोला है, क्वेश्चन में दिख रहा है 1 से 3 बोला है, और ये क्या हो गया 1 + dx/dy क्या बोला है, स्क्वायर रूट लगा है, तो ऊपर वाला टर्म में स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये 1 + y² + y⁴ और स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं था, तो ये आ जाएगा। अब बस अपने को ये s निकालना है और ये s ही एक्चुअल में l है,
क्वेश्चन में, जैसे मैं अभी यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप चाहो तो आप इसको एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दिस विल बी ट्रीटेड लाइक व्हाट, लाइक एल, राइट। ओके, चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, इसमें हमने क्या किया, अंदर एलसीएम ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर dy। सो अभी बहुत इजीली दिख रहा है ये अपने को कि दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, एंड डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर ऑलरेडी है। तो ये ओवरऑल अपने पास क्या बच गया, 1 2 3, दिस इज नथिंग बट वाई स्क्वायर प्लस 1/y dy, right? Now you can solve it easily. This is y plus 1/y dy. आप देखते हैं इसको क्या इंटीग्रेट करना है, बस अपने को कर लेते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पे था y, यहाँ पे था 1/y dy। चेक कर लेते हैं एक बार पीछे वाली स्लाइड पे जाके, y प्लस 1/y, करेक्ट, ठीक है। अब करते हैं इसको इंटीग्रेट। दिस इज वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ln y, याद रहे ln y है, बेस e होगा। ये बहुत मिस्टेक करते हैं सारे लोग, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज ln, यानी कि log टू द बेस e। सो दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 1, यानी 8/2, 4 आ गया। यहाँ पे देखो ln3 माइनस ln1, ln1 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ln3 जो है वो अपने पास 1.098 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, तो l का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ गया, 5.098। और यही अपने को पूछा था यहाँ पे क्या, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 5.098 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेंथ ऑफ द कर्व का कॉन्सेप्ट यूज करना था, नथिंग स्पेशल इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना था। और अगर आपको सपोज dy बाई डी एक्स गिवन होता तो आप इसको इस तरीके से यूज कर लेते, दिस इज dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर लेंथ ऑफ द कर्व के लिए आप x1 का लिमिट लगाते थे x2 तक, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/dy बाई प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर dx। सी ऐसे भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में अपने को क्या इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। तो ये एक एनईटी टाइप क्वेश्चन था जो अपने को गिवन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप सबको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, एंड इन केस अगर किसी को समझ नहीं आता है या किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम होती है, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एफ आपको R2 से R दिया है जो कि डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, तो आपको एक इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है जो कि है। पहले मैं एक फंक्शन जो गिवन है आपको वो लिख लेती हूँ, ठीक है। जो कि आपको गिवन है वो है y बाय साइन y, जब आपके पास y नॉन जीरो है, और राइट, और ये आपको 1 गिवन है जब y 0 हो, और आपको पूछी है जिस इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो है 1/y स्क्वायर, then 0 to 1, and you have y is equal to sine inverse x to pi by 2, I think, right, pi by 2 f of x comma y dx dy, ठीक है। सो जैसे ही हमने देखा इस फंक्शन को, अब f of x y की जगह जब मैं y by sin y रखूंगी, तो आपको पता है इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू इंटीग्रेट y by sin y इजीली। तो जब भी आपको, और इंटीग्रेशन पहले y के रिस्पेक्ट में ही होना है क्योंकि उसकी लिमिट इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, बट वो हो नहीं पा रहा है, तो अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंच गए, ये प्रॉब्लम कहाँ का है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, यानी मुझे ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिमिट्स लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 गिवन है, x इज इक्वल टू 1 गिवन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x गिवन है, एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन है, ठीक। अब अपने को बस यही एक चीज़ है जो ड्रॉ करनी है, और कुछ स्पेशल नहीं। अब प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आई होगी y इक्वल टू साइन इनवर्स x में। सबको पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ ये होता है, और वो x इज इक्वल्स टू -1 से x इज इक्वल टू +1 के बीच में होगा, और उसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है, यानी दिस इज y इज इक्वल टू -π/2, ये रेंज उसकी अगर मैं बात करूँ, और ये होगा y इज इक्वल टू π/2, ठीक है। और एक्चुअल में कर्व भी गिवन था अपने को y इक्वल टू π/2, हमने ड्रॉ कर दिया। x इक्वल टू 1 भी गिवन था, हमने वो भी ड्रॉ कर दिया, x इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 0। अब आप देखो जरा इंटीग्रेशन को, देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। x का लिमिट 0 to 1 है, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे 0 to 1 है, इतने रीजन की बात हो रही है। फिर हमने y की लिमिट साइन इनवर्स x से π/2, मतलब ये यहाँ से गई है, तो मतलब ये वो रीजन है जिसकी बात करी गई है, ठीक। अब हमें ऑर्डर चेंज करना है, मतलब हमें क्या करना है, हमें x की लिमिट को इन टर्म्स ऑफ y बनाना है, राइट।
हमें x की लिमिट को इन टर्म्स ऑफ y बनाना है, तो हम पैरेलल टू x से एक स्ट्रिप ड्रॉ कर देंगे। और अब आप देखो, जब मैंने इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाया तो x का लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे 0 से, अब ये क्या बन जाएगा, साइन y बन जाएगा, ठीक है। और बॉटम से टॉप जाएंगे तो यहाँ y इक्वल टू 0 है इस पॉइंट पे, और यहाँ y इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो y का लिमिट 0 से पाई बाई 2 आ गया, और फंक्शन अब आप रख दो इजीली, और ये dy dx हो गया। अब क्या करना है, बस इंटीग्रेशन करना है और आ गया अपना इंटीग्रल। यहाँ देखो, अब ये बना 0 से पाई बाई 2, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने सॉल्व कर दिया सबसे पहले, तो 0 टू साइन वाई यहाँ पे लिमिट लगेगी, और ये y बाई साइन वाई है ही, ठीक है, और ये dy यहाँ हो गया, तो साइन वाई कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो क्या बना, i इज इक्वल टू 1 बाई पाई स्क्वायर 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ देखो, ये साइन वाई लिमिट लगते ही कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ y बचा, y dy, तो ये क्या आया, i इज इक्वल टू 1 बाई पाई स्क्वायर एंड देन वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगी 0 से पाई बाई 2, 0 लगाने पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 हो जाएगा, ये बनेगा अपने पास पाई स्क्वायर बाई 4, और 2 ऑलरेडी रखा है, ये कैंसिल आउट हो गया, i कितना आ गया, 1 बाई 8। अब आपको पूछा गया है क्वेश्चन में करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 बाई 8 को करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास, 0.125, देखो यही आएगा, तो दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर। ऑल राइट, तो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस क्वेश्चन इजी हो गया होगा। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि जो आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है, उसकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, और जो डोमेन होगा वो -1 to 1 होगा, सो दैट्स हाउ यू विल ड्रॉ इट, ओके। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज द वॉल्यूम ऑफ द portion of the solid cylinder x square plus y square less than equal to 2 bounded above by the surface this and bounded below by the xy plane। xy plane का मतलब z is equal to 0, ठीक है। वॉल्यूम निकालने का तरीका हम सबको पता है, यही होता है, वॉल्यूम हमें निकालना है तो हमें एक्स वाई जेड का लिमिट लगाना पड़ता है, एंड दिस इज द ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी, ठीक है। अब बाउंडेड अबव बाय दिस सरफेस एंड बिलो बाय दिस सरफेस, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें z की लिमिट पता लग गई, कहाँ से कहाँ, 0 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये क्या बना अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड के रिस्पेक्ट में किया और लिमिट लगा दी, ये आ गया। अब हमें पता है ये अपने पास अगर 2D में बात करें तो ये बात करी जा रही है क्योंकि मैं इसका प्रोजेक्शन देख रही हूँ, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, ये जो वॉल्यूम में ये सरफेस की बात हो रही थी, अब मैंने 2D पे इसका प्रोजेक्शन देखा, सो ये अपने पास सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, इसकी बात करी जा रही है, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, अब आपको पता है जब भी सर्कल का केस आता है, सबसे ईजीएस्ट तरीका निकालने का हमारे पास जो है वो क्या है कि हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा, y इक्वल टू क्या होगा, r sin थीटा, और dx dy क्या बन जाएगा, चेंज ऑफ वेरिएबल से आपको पता है जेकोबियन की वैल्यू आ आएगी r d r d थीटा, तो यहाँ जब रखेंगे तो ये बनेगा r स्क्वायर, ये r d r d थीटा, ठीक। थीटा की लिमिट जो है वो 0 से 2 पाई जाएगी, और r अपने पास 0 से कहाँ जाएगा, ये सर्कल जो गिवन है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, मतलब इसकी रेडियस कितनी है, √2 है, तो √2 तक चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बना, 0 से 2 पाई, r क्यूब था, इंटीग्रेशन किया r टू द पावर 4/4, 0 से √2 डी थीटा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने लिमिट रखी तो √2 की पावर 4, तो ये क्या बनेगा अपने पास, √2 की पावर 4/4, और ये 0 से 2 पाई डी थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, √2 4 टाइम्स, यानी 2 × 2/4, और यहाँ थीटा दिस इज 0 to 2 पाई, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, और 2 पाई आ गया कि नहीं आ गया, आंसर चेक करो आप, हाँ जी 2 पाई आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये जो भी सरफेस गिवन थी उसका हमने वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लिया, बाकी ये चीज़ जो है वो कैंसिल आउट ही हो गई, तो अब आप पाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके एक अप्रॉक्सीमेट आंसर यहाँ पे जो था वो मेंशन कर सकते थे, ठीक है। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन, राइट। तो
अभी हमने 2015 के इंटीग्रल कैलकुलस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। इन केस किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी पॉइंट पे यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, आई रिप्लाई टू दैट। एंड आई जस्ट होप कि इस डिस्कशन से आपको कुछ और हेल्प मिले। सो ऐसे ही कुछ एक दो लेक्चर्स आपके पास और आने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड जो भी आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको यूज़ करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में अपडेट्स मिलता रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कमेंट बॉक्स में डू रिप्लाई एंड डू टेल मी अबाउट द class, and in case you face any problem you can also let me know about that. So thank you so much. All right.